Friends, how are you? All are fine? Okay. So today in this lecture, the ongoing lecture on this second chapter of the chemistry, acids and bases, and this is the lecture is both for classes ninth as well as for 10th. Okay, so now let me throw some more light upon this acids and bases. Now some concept of acids and bases earlier I have discussed before you. Now let me tell you today some other concept. Like we are knowing acids means which are sour in taste, are known as acid. Means acid has some sour taste, खट्टा taste होता है. And one property of the acid is what? The property of the acid is it turns this blue litmus paper. This is the litmus paper. It turns this blue litmus paper into red. Okay, so when you drip, this is the solution. This is the solution of this what can I say, acid. Okay, so when you dip this blue litmus paper को अगर आप इस acid में dip करते हैं, so ये blue litmus आपका red बन जाता है. ओके, सो एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है. क्लियर है? नाउ एसिड वी हैव ऑलरेडी रेड दिस. एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन आर नेचुरल एसिड ऑल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड्स. Okay, which are found in the plants, animals. Okay, many types of acids I have told you, like lactic acid found in the milk. Okay, formic acid found in the bite of the sting of ant. Okay, and bee also. Okay, so these are known as the mineral acid, sorry, natural acid or organic acid. Second type of acids are inorganic acids, also known as mineral acid. Means these are man-made acids. They are also known as the man-made acids. Okay, means they are formed by the natural minerals which are found there in the earth. So like nitric acid is the best example for this natural acid, sorry, this mineral acids. Clear na? Yes. Now bases, if I talk about the bases, so bases are bitter in taste, with something which is having some bitter taste. Okay, so these are known as the bases, and the property of the base is that it changes red litmus paper to blue. So when you dip the red litmus paper in the solution of base, this is the basic solution. So when you dip this red litmus paper in this solution, it will change दिस रेड लिटमस टू ब्लू. इस रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज कर देगा. कौन? ये आपका बेस है ना. तो बेस में अगर आप रेड लिटमस पेपर को डिप करोगे, इट विल चेंज इट्स कलर इनटू ब्लू. क्लियर ना? वेरी गुड. नाउ bases, some example of the bases are like this: sodium carbonate Na2CO3, also known as the washing soda. This is the common name for this. Okay, like lime common name for this calcium oxide. This is CaO. Okay, these are some examples of basic compounds. Okay dear, very good. Now let me take in a beaker base, and in another beaker I have an acid. Okay, there is a beaker. एक बीकर में मैंने एसिड बेस डाला और दूसरे बीकर में मैंने क्या डाला? एसिड डाला. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग अ टेस्ट ट्यूब. ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया इन द लैब, एक टेस्ट ट्यूब लिया, एंड व्हाट आई एम डूइंग इन दिस टेस्ट ट्यूब, जो बेस इसका नाम मेरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड. NaOH, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला. ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, सम स्पून, अ स्पून ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जस्ट आई एम पोरिंग देयर इन दिस टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब में मैं एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक स्पून इस टेस्ट ट्यूब में डालता हूँ. ओके, लेट्स सी. सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब इन विच आई हैव पोर्ड some sodium hydroxide. Now what is happening? After this I am taking what? इसी टेस्ट ट्यूब में मैं some drops of phenolphthalein solution. Phenolphthalein solution. Phenolphthalein solution is just like an indicator, like हमने करा था litmus paper is used as the indicator. So phenolphthalein solution is also used as an indicator. So some drops of phenolphthalein solution में इस टेस्ट ट्यूब में डाल देता हूँ, जिसमें मैंने बेस को डाला है. अब कुछ phenolphthalein solution की कुछ ड्रॉप में इसमें डाल देता हूँ इस बेस में. So what will happen? The phenolphthalein solution will change the color of this white color of this sodium hydroxide. The base के कलर को ये पिंक में बदल देगा. Okay, means the phenolphthalein solution changes the color of this base which was sodium hydroxide into pink color. Okay dear. Now what I am doing, now again, now it means the phenolphthalein solution, जो phenolphthalein solution होता है, it changes the pink in base. ये बेस को बेस में पिंक बन जाता है, यानी बेस में अगर डालो तो पिंक हो जाएगा. एंड कलरलेस इन एसिड, बट अगर इसको आप एसिड में डालोगे फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन को, तो कोई कलर उसको नहीं देगा. फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन विल नॉट गिव एनी कलर इन दिस एसिडिक सॉल्यूशन, बट इट विल गिव द पिंक कलर इन द बेसिक सॉल्यूशन. बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन डालोगे, सो इट विल गिव पिंक कलर. इस टाइप का पिंक कलर आपको ये देगा. ओके, सो दिस इज एन इंडिकेटर लाइक द लिटमस पेपर, turmeric powder, China rose. We have read about some other indicators. So phenolphthalein solution is also an indicator for acids and bases. बेस में अगर phenolphthalein solution डालेगा,
डालोगे इट विल चेंज इट्स कलर इनटू पिंक एंड इट विल नॉट चेंज द कलर ऑफ द एसिड. एसिड का कलर को चेंज वो नहीं करेगा, इट विल रिमेन कलरलेस. ओके डियर, वेरी गुड. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब ये जो मेरे पास एसिड है, दिस एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड केमिकल फॉर्मूला इज HCl. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ये बेस में पहले बेस डाला था मैंने, इसमें बेस में मैंने कुछ ड्रॉप फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन की डाली तो पिंक बदल गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ड्रॉप्स मैं एसिड के ले रहा हूँ और एसिड के कुछ ड्रॉप्स मैं इस टेस्ट ट्यूब में डाल देता हूँ. अब क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल टेक प्लेस, कलर. नाउ लुक द कलर. जैसे ही आपने एसिड की ड्रॉप्स इसमें डाली पिंक कलर, ये बेस को फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन ने पिंक बना दिया था यहाँ पे. तो इसी पिंक सॉल्यूशन में जैसे ही आपने एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली तो अगेन द कलर इज चेंजिंग टू अगेन द प्रीवियस कलर. जो पहले कलर का बेस का कलर था वही कलर दोबारा बन गया. जैसे ही आपने उसमें एसिड डाला द कलर डिसअपियर्स. पिंक कलर आपका डिसअपियर हो गया, एसिड डालते ही इसका पिंक कलर डिसअपियर हो गया. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया. क्या कर दिया, द एसिड हैज न्यूट्रलाइज द बेस. एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया. ओके, सॉल्ट बना दिया है भाई यहाँ पे, है ना. एसिड अगर बेस में पड़ता है, यहाँ पर पहले से ही बेस था, उसमें आपने फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डाला था, पिंक हो गया था. बट जैसे ही उसमें आपने एसिड डाला तो इट हैज़ न्यूट्रलाइज, उस एसिड को, उस बेस को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड ने, और क्या बन गया वहाँ पे, सॉल्ट बन गया. ओके, सो आप बोलोगे बेस इज न्यूट्रलाइज बाय एन एसिड. जो बेस आपने था उसको एसिड ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया. ओके, बेस को एसिड ने. क्या ये जो कलर अब आपका बन गया, जैसे पहले आपने बेस डाला, उसमें फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली, पिंक बन गया, पिंक डालने के बाद फिर से आपने एसिड डाला, फिर से सेम कलर हो गया. क्या आप फिर से अगर बेस की ड्रॉप्स डालोगे क्या फिर से पिंक कलर हो जाएगा? यस. नाउ लेट्स टेक अ टेस्ट, लेट्स टेक इन द सेम. अब इसी टेस्ट में फिर से सम ड्रॉप्स बेस के, फिर कुछ 1 स्पून बेस का फिर डालता हूँ. ओके, सो व्हाट विल हैपन, अगेन द कलर विल अपीयर, सेम कलर विल अपीयर लाइक विच वाज अर्लियर. जो फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डालने पर जो कलर आया था पिंक कलर, वही कलर फिर से अपीयर हो गया आपका. इसका मतलब क्या हुआ, जो एसिड है उसको अब बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया. नाउ द एसिड हैज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस. सो इट मीन्स व्हेन द एसिड एंड बेस आर रिएक्टिंग, देखो इसमें एसिड और बेस की रिएक्शन ही तो हो रही है ना. जैसे ही पहले आपने एसिड डाला कलर डिसअपियर हो गया, उसी एसिड ने फिर से आपने यहाँ से बेस डाल दिया, फिर से कलर पिंक कलर आ गया. इट मीन्स एसिड्स एंड बेसिस आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर. पहले में एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज किया, अब नाउ बेस है न्यूट्रलाइज द एसिड. क्लियर ना. सो आप बोलोगे इज एसिड न्यूट्रलाइज बाय बेस, क्या एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा? सो आंसर इज यस, एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय अ बेस. एंड दिस इज द रिएक्शन. ये रिएक्शन यहाँ पर हुई थी अभी, है ना. जैसे पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ओके, जैसी पिंक कलर आ गया, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, उसमें फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डाला तो पिंक कलर आ गया. जैसे ही उसमें आपने एसिड डाला, HCl डाला, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की भी रिएक्शन हुई. ऐसी रिएक्शन है NaOH प्लस HCl की भी रिएक्शन हुई, तो आपका बन गया NaCl. यहाँ से Na और Cl आपस में निकले तो NaCl, यहाँ से Na एंड यहाँ से Cl, NaCl बन गया, और HOH मिलके H2 आपका बन गया. तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो गई थी, है ना. बेस और एसिड जैसे ही आपने डाला तो ये रिएक्शन यानी सॉल्ट बन गया था. दिस इज द कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो नमक आप घर पे यूज करते हैं, तो सॉल्ट बन गया आपका. ओके, सो वेन एवर द एसिड एंड बेसिस आर रिएक्टिंग, ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. इसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, आप न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन. NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2. दिस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Okay, so whenever the base and acid are reacting together, they are making salt and water. This is salt and this is water. So every time whenever the acid and bases will react, they will make salt. Okay, so use some other examples also I can give you, like this. In this case, HCl plus CaOH whole twice. HCl is acid and CaOH whole twice is calcium hydroxide, है ना. This is base. So they are reacting, they are forming a salt which is calcium chloride. This is the salt. Okay, and water. So same reaction will again, the same reaction will again appear. Okay, this is again will be known as the neutralization reaction. अब आपको पता होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यू कैन प्रैक्टिकली फील दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो. ओके, समटाइम्स यू कैन सी इन योर स्टमक द अमाउंट ऑफ द एसिड, जो एसिड आपके अमाउंट ऑफ द एसिड बढ़ जाता है आपके स्टमक में. यू कैन सी दिस. ओके, अमाउंट ऑफ द एसिड आपके स्टमक में कभी बढ़ जाता है, ये आपके स्टमक में अभी एसिड बढ़ गया, तो क्या होगा, दिस एसिड कौन सा एसिड होता है, दिस एसिड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. दिस एसिड इज HCl, HCl,
क्लोरिक एसिड। अब आपको पता है एसिड बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है आपको। तो न्यूट्रलाइज किसके द्वारा होगा, इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस ऐड करना पड़ेगा। नहीं क्लियर ना, बेस ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपके स्टमक में एसिड बढ़ गया, स्टमक है, स्टमक में अगर एसिड बढ़ जाता है तो क्या होगा, आपको खट्टी डकार आती है और बर्निंग इफेक्ट, आपको पता है ना एसिड का इफेक्ट क्या होता है, बर्निंग इफेक्ट होता है। तो आपको ऐसी जलन जलन सी पेट में लगने लग जाती है। क्लियर है ना। और अगर ज़्यादा हो गया तो ये आपके जो स्टमक की जो वॉल्स हैं उसको डैमेज कर सकता है ये HCl, हार्मफुल ऑल्सो ना। ओके, तो इसको आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। तो बेस के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, मेडिसिन। सो व्हेन यू टेक द मेडिसिन, जब आप मेडिसिन इनहेल करोगे, ये मेडिसिन जा रही है, मेडिसिन इनहेल करोगे तो क्या होगा, ये मेडिसिन जो होगा बेस होगा। ये बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो न्यूट्रलाइज करके आपस में दे आर न्यूट्रलाइजिंग इच अदर एंड मेकिंग द सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर आपका बन जाएगा। ओके, सो आपका एसिडिटी जो बढ़ गई थी, एसिड अमाउंट ऑफ द एसिड विच वॉज रेज्ड इन योर स्टमक, दिस अगेन विल बी न्यूट्रलाइज। सो पुरानी क्वांटिटी में वो आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन which I have thrown some more lights. Okay dear, now see you in the next video. Till then stay tuned. Bye bye.